हेलो दोस्तों, अगर डिक्टेशंस पसंद आएँ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, बेल के साथ दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली डिक्टेशंस टाइम टू टाइम समय पे मिल सकें। थैंक यू। Start. Petitioner has challenged the order dated 26 to 2018 passed by civil judge in bracket junior division bracket out Gurugram wide which the application under order 7 rule 11 CPC filed by the defendant slash petitioner for rejection of plaint was dismissed. Full stop para. Respondent slash plaintiff filed a suit for declaration and consequential relief of permanent injunction with the following prayers para first. Declare termination letter dated 16/3/2017 invalid and illegal full stop para. Second, order lifting of corporate veil to unearth real position of respondents full stop para. Third, allow the plaintiff to work regularly in the respondent organization and the other group companies with whom the plaintiff is a regular shared resource full stop para. Fourth, arrange for alternate job in any of the respondents other units in India or overseas full stop para. Fifth, pay past salary and all other dues immediately full stop para. Sixth, pay salary and dues regularly and timely in compliance with the law full stop para. Seventh, to instruct all the respondents functional heads and managers of the plaintiff to adhere to the laws of the land, do not threat the plaintiff or exercise any coercion in any manner, shape or format full stop para. Defendant slash petitioner is a private limited company full stop. Defendant slash petitioner filed an application under order 7 rule 11 CPC for rejection of the plaint on the ground that the plaintiff slash respondent was appointed as AGM by the defendant company wide appointment letter dated 3/9/2012 full stop. Plaintiff has been terminated under clause 17 of the appointment letter by giving notice period of 60 days and also by making the payment of salary for the said period full stop. Defendant claimed that the suit is barred in terms of section 41 in bracket E bracket out read with section 16 of the specific relief act, and thus the suit is also barred under order 7 rule 11 in bracket D bracket out CPC full stop para. Trial court dismissed the application even while considering that the contract of personal nature cannot be specifically enforced, but the court opined that an opportunity of hearing must be given to the plaintiff full stop para. I have heard learned counsel for the petitioner and the respondent number 1 in person full stop para. Respondent number 1 was enrolled as an advocate with Bar Council of Delhi with an enrollment number D/1997/2004 full stop. This fact has not been denied by respondent number 1. However, he contended that he had never practiced in a court of law full stop para
As per appointment letter dated 3/9/2012, respondent number 1 was appointed as Assistant General Manager / Strategy Marketing Division grade in bracket M2 bracket out, clause number 17 of the aforesaid letter, that is termination of contract, is to the following effect full stop para. During the probationary period, either party may terminate this contract by giving 1 bracket out day written notice or salary in lieu of such notice period full stop. It is classified that this notice may be given at any time before the expiry of the probationary period full stop. After confirmation of your appointment, either party may terminate this appointment full stop over. दोस्तों ये हो गया है, लगभग 90 की स्पीड का डिक्टेशन है. इसमें पैराज कुछ ज़्यादा आए, तो पैरा के साथ साथ इसमें रोमन नंबर्स भी हैं, मतलब पैरा को डिफ्रेंशिएट करने के लिए. ठीक है, कोई नाम इसमें फ़िलहाल तो नहीं है. हाँ, गुरुग्राम है इसमें, तो गुरुग्राम हम आपको बता चुके हैं शायद पहले की डिक्टेशन में कैसे बनेगा. गे आर एक दूसरे के ऊपर बना दीजिए, गे आर ऑन द लाइन, और डबल डैश लगा दीजिए, गुरु हो जाएगा गुरुग्राम. ठीक है, और कोई नाम नहीं है इसमें. ठीक है, तो चलिए फिर टाइम न वेस्ट करते हुए चलते हैं कमेंट सेक्शन की तरफ. कमेंट में जिसकी 6 मिस्टेक्स आई हैं, नवदीप सिंह जी, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेट्स. बहुत अच्छी मिस्टेक्स है, अपनी पोजीशन को बनाए रखिएगा. और ये बुक कौन सी है प्रांजल जी? ये बुक AWC ही हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर डिक्टेशन हमारे इलाहाबाद वीकली केसेस के होते हैं, तो शायद ये ज़्यादातर जो है यहीं प्रयागराज में मिलती है, लेकिन बाहर भी मिल सकती है, ऐसा कुछ नहीं है. कोशिश करिएगा पता करने की. और शमी जी की मिस्टेक कैपिटल्स में ज़्यादा आती है, तो चिंता मत करिए, कैपिटल्स को बस ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए कि क्या चीज़ कैपिटल हो सकती है. ठीक है, प्रॉपर नाउन और डेजिग्नेशन, पोस्ट वगैरह, किसी का नाम हो गया, शहर का नाम हो गया. ठीक है, और क्या कहते हैं, जिनके साथ नंबर्स आते हैं वो, क्योंकि वो पर्टिकुलर उसी नंबर की बात हो रही है ना, तो ये सारी चीज़ें कैपिटल्स में होती हैं. ट्रायल कोर्ट स्मॉल में होता है, आपने पूछा दूसरा. ठीक है, बाकी सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल, दिस कोर्ट, ये सब कैपिटल्स में होगा. बाय दिस कोर्ट, तो बाय दिस कोर्ट में कोर्ट कैपिटल होगा. ऑफ दिस कोर्ट, जहाँ पे भी दिस कोर्ट आ जाता है कोर्ट कैपिटल हो जाता है. ठीक है, कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करिएगा मैटर में, तो आपको पता चल जाएगा क्या होना चाहिए क्या नहीं. अब सारे नंबर तो आप कैपिटल्स में नहीं खींच लोगे ना कहीं मिस्टेक भी तो आनी चाहिए. तो आप ये स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे आपके दिमाग में घुसेगी चीज़ें, परेशान मत होइए. आप धीरे धीरे सीनियर बनोगे अपनी फील्ड में. ठीक है, तो कैपिटल्स धीरे धीरे आप करके इसको ख़त्म करो कि हाँ ये भी कैपिटल होता है, ये भी कैपिटल होता है. इस तरीके से जब नॉलेज बढ़ जाएगी तो ज़्यादातर चीज़ें आपको पता चल जाएंगी कि क्या कैपिटल होगा क्या नहीं. और सुमित जी ने कहा है कि अगर कहीं पे कोई प्रोनाउंसिएशन क्वालिटी, साउंड क्वालिटी वगैरह ये सब सही नहीं है, या ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो उसको कैसे निपटा जाए. एग्ज़ाम्स तो काफ़ी हाँ दिए हैं हमने एग्ज़ाम्स, तो देखिए इसका कोई रामबाण इलाज तो नहीं है. इसका सिर्फ यही इलाज है कि एग्ज़ाम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट आवाज़ों में डिक्टेशंस लें ताकि आपको आदत पड़ सके. ठीक है, और वर्स्ट कंडीशन में डिक्टेशंस लें. हम डालते थे, व्हाट्सएप ग्रुप था हमारा, अभी भी है, तो उसमें डिक्टेशंस वगैरह अभी तो नहीं, फ़िलहाल नहीं प्रोवाइड करवा पाते हैं, लेकिन पहले करवाते थे. उसमें स्पीकर की आवाज़ थी जो गूंजती थी, इस टाइप के डिक्टेशंस भी हम देते थे. और जो है कि क्या कहते हैं, कहीं कहीं पे जैसे पटना वटना में ये होता है कि साउंड क्वालिटी सही नहीं होती, बीच में चाय चुई सुई की आवाज़ आने लगती है ना. सिस्टम भी सही नहीं होता है, कि कोई हार्ड कीबोर्ड होता है, कहीं पे कुछ हैंग करने लगता है, ये सारी चीज़ें. तो असल में होता क्या है ना, डेली जनसंख्या बढ़ रही है. ठीक है, और स्टेनो के लोग भी बढ़ रहे हैं, वैकेंसी कम हो रही है. तो एग्ज़ामिनर जो होता है ना, वो इसलिए भी ये सारी चीज़ें करता है ताकि कंपटीशन को और हार्ड बना सके. ऐसा नहीं है कि वो लोग चाहें तो वो लोग सही कर सकते हैं, बिल्कुल सही करते हैं भाई. अगर 1,000 रुपये का फॉर्म है, 4,000 बच्चों ने डाला है, 40 लाख तो हो गए.
तो वो 40 लाख का यूटिलाइजेशन तो अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन वो करते नहीं है जान के, इसलिए क्योंकि अगर उनको उनकी दी हुई सीट से ज़्यादा कैंडिडेट मिल गए तो वो सेलेक्ट किसको करेंगे, है ना पॉइंट की बात। तो वो जानबूझ के इतना कठिन एग्ज़ाम कर देते हैं कुछ भी क्वालिटी गिरा करके, ताकि सिलेक्शन कम हो लोगों का, ठीक है। वो उनका मोटिव बिल्कुल नहीं होता लेने का लोगों को, वो लोग बस ये चाहते हैं कि हम इतना कंपटीशन टफ कर दें कि हमको क्रीम बच्चे मिलें। तो आपको क्रीम बनाना है तो उसके लिए तो कुछ भी कोई नहीं कर सकता है, सिवाय इसके कि ईमानदारी से आप अलग अलग आवाज़ों में डिक्टेशन लीजिए, किसी को भी पकड़ लीजिए जिसको इंग्लिश बोलना ना आता हो उससे बुलवा दीजिए। मतलब इतना भी नहीं है कि बोलना नहीं आता है तो बेचारा बोली कैसे पाएगा डिक्टेशन, मतलब जो जिसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गड़बड़ हो उसको भी बिठा के लिखवाइए, उससे कहिए कि डिक्टेशन दो। वैसे कुछ नई नई चीज़ें जो कलाकारियाँ होती हैं ना उसको कीजिए, इसी से आपका इम्प्रूवमेंट होगा। और प्लस ज़्यादातर लोग, अच्छा सबकी ये भी आदत ख़राब होगी कि ईयरफोन लगा के डिक्टेशन लेते हैं, तो भैया बाबूजी ऐसा मत करिएगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर ईयरफोन लगा के डिक्टेशन लीजिएगा तो फिर आप ईयरफोन में थोड़ा ना एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम तो स्पीकर पे होगा, तो मोबाइल में ईयरफोन लगा के लेने की क्या ज़रूरत है डिक्टेशन। हमने देखा है, नोटिस भी किया है, लोग इस तरह से करते हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए। और जिन्होंने थैंक्स दिया है उनको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको अच्छी लग रही हैं हमारी वीडियोस। और सुमित जी की 5 मिस्टेक आती है, बहुत अच्छी मिस्टेक्स है, इसको बना के चलिएगा, मेहनत लगातार करते रहिए, और क्योंकि एग्ज़ाम की डेट कभी भी आ जाएगी कोई नहीं जानता है। और ये अप टू है ना, ये वाला जो कमेंट था रवि कुमार जी का, अप टू देखिए, जो ये अप टू मिला देते हैं ना, ये थोड़ा गड़बड़ वाला सिस्टम है, ठीक है। मेन जो होना चाहिए वो अप और टू अलग अलग होता है। अब वो पता नहीं क्या एक चलन सा चालू हो गया है हाई कोर्ट की, मतलब कोर्ट्स की बुक में ही ज़्यादातर अप टू को एक साथ कर देते हैं, तो उसकी वजह से एक बेल्ट चल रही है कि नहीं अप टू जो है एक साथ होगा। लेकिन अगर कायदे से देखा जाए तो अप टू को अलग होना चाहिए, ये अलग ही होगा भी, ठीक है। तो इसको आप लोग रेक्टिफाई कर लीजिएगा। चलिए तो ठीक है। अच्छा, एक कंटेमनर और कंटेमनर की जो स्पेलिंग है दोनों देखिए, दोनों सही है, लेकिन ज़्यादातर कंटेमनर OR का यूज़ होता है, ठीक है। कंटेमनर वही है जिसको कि कोर्ट ने पकड़ा हुआ है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए, जिसके ऊपर चार्ज लगाया गया है, दैट इज़ कंटेमनर OR, ठीक है। और इसी का दूसरा मीनिंग, इसको दूसरे तरीके से भी आप कंटेमनर ER को आप ये कह सकते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जिसके द्वारा हुआ गया है, मतलब एक बंदे के लिए वो OR है और दूसरे बंदे के लिए वो ER है, ठीक है दोनों एक ही बंदे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप कुछ मतलब मत समझिए, आप OR को बस पकड़ के चलिए, ठीक है। OR इज़ द बेस्ट स्पेलिंग, ठीक। और डेट, कोई डेट छोड़ दें तो कितना मिस्टेक काउंट होगा, एक सिंगल पूरी एक मिस्टेक काउंट होगी डेट के लिए, ठीक है। और क्योंकि डेट देखिए, हाँ एक चीज़ ये भी टेक्निकलिटी है, डेट में 3 मिस्टेक भी काउंट हो सकती है, क्योंकि तीनों डेट्स का एक अलग वजूद होता है, ठीक है। कोई नंबर है, नंबर का ग्रुप है डेट, लेकिन इसमें तीनों का अलग वजूद है ना, डेट में वो अक्टूबर है, वो ईयर है, वो डेट है। तो इसमें अब ये एग्जाम बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने मिस्टेक काउंट करते हैं, वो लोग अनाउंस करते हैं, जहाँ कहीं भी ऐसी चीज़ें होती हैं वहाँ पे अनाउंस किया जाता है, ठीक है। लीगल मैटर की यही खासियत है, और पंजाब हरियाणा की यही खासियत है कि वो ये सब चीज़ें अनाउंस कर देते हैं कि कितनी किसके लिए मिस्टेक काउंट होगी, पार्शियल मिस्टेक काउंट होगी या पूरी फुल मिस्टेक काउंट होगी, ये सब वो बता देते हैं। इसलिए टेंशन मत लीजिए, 80 की स्पीड का डिक्टेशन है, आपको बहुत प्यार से लिखना है, ठीक है। कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं, नौकरी सबकी लगनी है, ठीक। चलिए फिर लेट हो रहा है, तो अब हम अगली डिक्टेशन देंगे आपको, तब तक आज्ञा दीजिए हमको, मिलेंगे फिर नेक्स्ट डिक्टेशन में। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइएगा, ज़रूर से भूलिएगा मत, लाइक अभी भी कम आ रही है। थैंक यू।